Okay, once again, welcome to all in Tech Upgrade classes. First of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I'm mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch in 2013. And my latest gate rank is AIR 192 in GATE 2020. And I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam. And in this lecture series, I am going to discuss the strength of material, and this is lecture number 5 of module 1. So let's crack the gate, and once again welcome to all. Now in this lecture, first of all, I am going to discuss with you effect of all the forces जो कि हमने already previous lecture में पढ़े थे. And the first one is that is the effect of eccentric axial normal load. Correct? So let's see here. First here I am going to draw a figure like this. Suppose here we have a body or a structural member like this. And its one end is fixed and another one is free. First here I am going to draw a centroidal line, centroidal longitudinal axis like this. This is centroidal longitudinal axis of the member. Correct? Now, first here I am going to apply an external force like this. And then you can see here this force is acting away from the centroidal axis. Yes or no? This force is acting away from the centroidal axis, but it is perpendicular to cross section. And as we know that whenever we have a force which is acting perpendicular to cross section, then this is called as normal load. And since it is acting away from the centroidal axis, and here we have eccentricity like this, this is E. Therefore, it is considered as eccentric axial normal load. Correct? Now, as we know that whenever we have eccentric load, then our first aim is to shift this load from this eccentric position to its centroidal position. Yes or no? And now how we can shift this load? Then you can see here. First, at the centroid, here I am going to apply two equal and opposite force like this. Correct? Two equal and opposite force, and these are imaginary force. Is it clear? This is F1 and this is F2. Correct? And now as we know that in this system here we have two forces. This is P, another force is F1 like this. And as we know that here F1 is equal to F2 is equal to P. Yes or no? And whenever we have two equal and opposite force, and they have some eccentricity, then they will produce a couple. Yes or no? As already I told you. Then here we can get M equal to force into perpendicular distance, that is E. And what about its direction? Then you can see these two forces are trying to produce this couple in clockwise direction. Yes or no? Now the thing is, what is the axis about which this couple can act? Yes or no? So once again here I am going to tell you the reference axis system like this. This is our z axis and this is our x axis and this is our y axis. Yes or no? And now you can see due to this force P and this F1, they will produce a couple like this. Yes or no? So this is the plane of the couple. Yes or no? And this plane is nothing but this is called as YZ plane. Yes or no? This is plane of the couple. Plane of the couple. And due to this couple, this member can bend like this. Yes or no? This member can bend like this. And this bending takes place about which axis?
So from this discussion we can say this bending is takes place by a axis which is perpendicular to the yz plane, yes or no? And this axis is named as x-axis, yes or no? Is that clear? This axis is named as x-axis, and this x-axis is nothing but this is transverse axis. This is transverse axis for this member. And as we know that whenever we have a couple which is acting about transverse axis, then this is known as bending couple. Is it clear? So whenever we have an eccentric axial normal load, then it will produces a bending couple. Yes or no, like this. And its magnitude is constant throughout the length. This couple is acting throughout the length, same, yes, constant throughout the length, yes or no? With same magnitude, with same direction, yes or no? And now, as we see, from these two force, we can get this couple, yes or no? So it is cancelled out. And remaining here, we have another force that is F2, which is equal to P, yes or no? And this is axial normal tensile load, yes or no? This is axial normal tensile load. करेक्ट, ये जो F2 फोर्स एक्ट हो रहा है अगेन दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एंड इट इज एक्टिंग along the centroidal longitudinal axis or normal axis, therefore it is considered as axial normal tensile load. So here if I draw its equivalent diagram, then it can be drawn like this. You can see here, whenever we have an eccentric load, then you can see here, due to this eccentric load, here we can get two loads, yes or no? First one, that is axial normal load, axial normal tensile load, that is P, and here we have one couple like this, and this is nothing but this is bending couple. Yes or no? Mx is equal to P into E in clockwise direction. Yes or no? So दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि in this particular analysis we can find out the magnitude of this couple as well as direction of this couple and their nature. Is that clear? ये bending couple है, twisting, ये भी हमें यहाँ से पता चल गया. And this axis is nothing but this axis is called as neutral axis. This axis is called as neutral axis when we studied. जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस. वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी एक्सिस के अबाउट ये कपल एक्ट होता है, जिस भी एक्सिस के अबाउट एक कपल एक्ट होता है, उस एक्सिस को हम न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे एंड वी ऑलवेज टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस. करेक्ट. तो इसे हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस के टाइम पे. करेक्ट है दोस्तों. तो आपने देखा कि इस तरीके से लोडिंग के कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट लोड डायग्राम. इज इट क्लियर? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? तो सिंपली हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि whenever we have eccentric axial normal load, then we get number one, that is constant bending couple, and another one that is axial normal load. Yes or no? And because of this bending couple, here we get bending stress, and due to this axial normal load, here we can get axial stress. Correct? So due to this load P only, here we can get two types of stresses. Is it clear? That is bending stress and axial stress. Yes or no? That's why इसीलिए हमने कहा कि इस फोर्स को, इसके इफेक्ट को स्टडी करना जरूरी है. आपने इस फोर्स को जैसे इस इसेंट्रिक पोजीशन से सेंट्रोइडल पोजीशन में शिफ्ट किया, तो इमीडिएट पता चल गया कि भाई यहाँ पे दो फोर्स, दो लोड एक्ट होंगे. एक आपका बेंडिंग कपल एक्ट होगा और एक एक्सियल नॉर्मल लोड एक्ट होगा. और जैसे हमें लोड पता चल गया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लोड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस विल इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर member due to this particular load. Yes or no? Correct? So remember this thing. Now next, that is the effect of transverse shear load. Once again हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड which types of stresses will induced and which types of loads may act due to this transverse shear load. Is it clear? And here we see this is its cross section.
like this. Okay. Now let's say this is centroidal longitudinal axis or centroidal normal axis for this member, and this is transverse axis. And again, with respect to our reference axis system, this is called as y-axis, and this is called as x-axis, and this one is z-axis. Is it clear? Now in this case, the load is acting like this. This is load P. Yes or no? यहाँ पे एक ऐसा लोड एक्ट हो रहा है, और इसी को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देन वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. दिस इज P. नाउ यू कैन सी this force is acting parallel to the cross section. Yes or no? Parallel to this cross section along the centroidal transverse axis. That's why this load is called as transverse shear load. Yes or no? करेक्ट. और इसी को हम इस लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब हमें देखना है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा. सो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस. यस और नो? at a distance of x from free and where this load is already acting. Yes or no? And this distance is x, and this cross section is xx. Correct. Now here I'm going to write movement about this point. How? By just applying two equal and opposite force. Yes or no? यहाँ पे हमारे पास एक ही रूल्स है. At this point we can apply two equal and opposite force. This one and this one. Yes or no? And here this is F2 and this one is F1. Now once again you can see here we have an element like this, and in this element the load is acting like this. Here we have a load P, and here we have another force like this. Is it clear? This one is P and this one is F1. And once again you can see here this distance is x. Once again here we can see here we have two equal and opposite force. क्या act हो रहा है यहाँ पे? Two equal and opposite force, and both are acting in same plane. Correct? Then they will produce a couple. Why? Because they have some eccentricity, and this couple is nothing but this is P into x. And what about its direction? Then you can see due to this force system, here we can get a couple like this. Means this is, here we have clockwise couple. Yes or no? And since this couple is a function of x, that's why it is considered as variable couple. Yes or no? Now tell me whether it is bending or twisting couple. Is it clear? This is very important thing. आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो couple act हो रहा है whether it is bending or twisting. So let's see here. Due to this force, here we can get a couple like this. कुछ इस तरीके से couple act हो सकता है because of this force P and F1. Yes or no? And once again due to this couple, this beam may bend like this. Yes or no? This member K can bend like this. Yes or no? So simply we can say this is called as plane of the couple, which is YZ plane. Yes or no? Correct. YZ plane is a plane of the couple, and this plane can only rotate about x-axis. Yes or no? Once again here I am going to tell you the reference axis system. Is it clear? You can see this is z-axis, this is y-axis, and this is x-axis. Again, with respect to this reference axis system, this YZ plane can rotate about x-axis only. Yes or no? So simply here we can write this couple is acting about x-axis. Yes or no? Is that clear? And now once again you can see here this x-axis is nothing but this is centroidal transverse axis for this particular member. Yes or no? And whenever we have a couple about centroidal transverse axis, then this is called as
बेंडिंग कपल। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि विद दिस एनालिसिस वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कपल, कि इस कपल का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस कपल, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कपल, वेदर इट इज वेरिएबल और कांस्टेंट, correct, and similarly whether it is bending couple or twisting couple, and about this axis, yes or no। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ apart from this couple, apart from this couple, here we have another force, that is F2, yes or no, and this F2 is nothing but this is F2 is equal to P, yes or no, because we know that F1 is equal to F2 is equal to P, and this is called as transfer, simply it is called as shear force, yes or no। इसे हम shear force कह सकते हैं, why, because it is acting parallel to the cross section, correct, yes or no। So simply here you can get, due to this load here you can get bending stress, that is M upon Z, and similarly here due to this shear force here you can get shear stress, that is force upon cross section area, yes or no, correct। तो दोस्तों आपने देखा due to this force only, due to this one force, due to this force P we can get bending stress as well as shear stress, but this bending stress is a variable stress, yes or no, correct। So simply here we can conclude that from this discussion, whenever we have a transverse shear load, whenever a member is subjected to transverse shear load, then it will produces number one, due to this transverse shear load here we can get number one, variable bending couple, yes or no, bending variable bending couple, remember this thing, correct। Another one, that is constant shear force, करेक्ट, क्योंकि ये shear force F2 इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, yes or no, मतलब अगर मैं x की कोई भी वैल्यू कंसीडर करूं, इस F2 की वैल्यू आपको एवरीवेयर यू कैन गेट सेम वैल्यू, yes or no, correct। That's why here we can say here we can get constant shear force। So remember this, these 2 points, whenever a member is subjected to transverse shear load, then it will produce as variable bending couple as well as constant shear force, is it clear? Now, another load, that is effect of eccentric transverse shear load. Now, once again, you can see here. First here I am going to draw a figure like this. And this is its cross section. This is its centroidal longitudinal axis. This is transverse axis x and y. Is it clear? Simply it is x axis, this is y axis, and this is z axis. Now you can see in this case, in this case, the external load is acting like this. और इसी को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस आर नो। दिस इज फोर्स P, दिस इज ऑल्सो फोर्स P, करेक्ट। नाउ यू कैन सी अगेन दे हैव सेंट्रिसिटी, यस आर नो, दैट इज E, यहाँ पे सेंट्रिसिटी है, this is x axis, correct। Now along this axis here, once again here I am going to apply two equal and opposite force like this, correct। Suppose this is F2 and this is F1, every time F1 is equal to F2 is equal to P, correct, ये हमेशा ही रहेगा, correct। Now you can see here, this is eccentricity E। Now our whenever we
we see whenever a member is subjected to eccentric loading, then our first aim is to shift this load from eccentric position to centroidal position. This is our first aim, correct? क्योंकि जब तक आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे सेंट्रोइडल पोजीशन में, तो आप किस तरीके के लोड यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और जब तक आपको लोड नहीं पता होगा कि कौन कौन से लोड इस मेंबर में एक्ट हो रहे हैं, तब तक आप एक्यूरेट स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यस आर नो? और स्ट्रेस एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करोगे तो प्रॉपर डिजाइन नहीं हो पाएगा। यस आर नो? नाउ यू कैन सी, इस सेक्शन को मैं बाहर लेके आता हूं। दिस लोड इज पी एंड दिस इज F1 और इनके बीच में इसेंट्रिसिटी कितनी है? E। और सिंपली अगर मैं यहां पे शो करूं इसके क्रॉस सेक्शन में, देन यू कैन सी लाइक दिस। This is F1 and this is F2. Is it clear? Then you can see, and this is the direction of view. Remember one thing. This is the direction of view. यहाँ से आप खड़े होके देख रहे हो. Is it clear? Direction of view. Now you can see, due to these two loads, again they have, here we have two equal and opposite force and they have eccentricity, yes or no? Therefore they will produce a couple, that is P into E. और आप यहाँ पे देखो, इन दोनों फोर्स ने मिलके यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक कपल प्रोड्यूस किया। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज प्लेन ऑफ द कपल एंड दिस प्लेन इज नथिंग बट दिस इज XY प्लेन, यस आर नो? और इसी को हम कहेंगे प्लेन ऑफ द कपल, यस आर नो? करेक्ट? तो ये प्लेन ऑफ द कपल जो है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ड्यू टू दिस कपल? Simply here we can say this is acting about Z axis and Z axis is a longitudinal axis for this member. Simply it is called as centroidal normal axis or centroidal longitudinal axis. And remember one thing, whenever we have a couple which is acting about longitudinal axis or centroidal normal axis, then this couple is considered as twisting couple. And what about direction? अगर आप यहां से देखोगे, करेक्ट है, if you see from this, then this couple is looking in anti-clockwise direction, yes or no? करेक्ट है। यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे प्लेन देख रहे हो, एक्चुअली ये प्लेन कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से था ये। इज इट क्लियर? और इस प्लेन को मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये सानो, तभी ये फोर्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपको कपल का डायरेक्शन दिख रहा है, दिस इज एक्टिंग, ये जो कपल एक्ट हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है इफ यू सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन। बट एक्चुअली यहाँ पे हम इसको देखेंगे, करेक्ट है, यहाँ पे ये फोर्स एक्चुअली एक्ट हो रहा है, क्रॉस सेक्शन को हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम रोटेशन इसको कुछ इस डायरेक्शन में करते थे तो आपको सेम डायरेक्शन मिल सकती थी, करेक्ट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये दोनों मिलके यहाँ पे कपल कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप इधर से देखोगे, व्हेन योर डायरेक्शन ऑफ व्यू इज लाइक दिस, ये कपल एक्ट हो रहा है इन काउंटर क्लॉकवाइज, यस और नो? करेक्ट? तो यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन भी पता कर लिया और नेचर भी पता कर लिया, एक्सिस भी पता कर लिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि दिस कपल इज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस और यहाँ पे जो कपल एक्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इट्स ओके, नो इशू, ये दोनों मिलके कपल प्रोड्यूस कर लिए। रिमेनिंग क्या बचा? दिस वन F2, दिस इज अगेन इट इज कंसिडर एज ट्रांसफर शियर लोड, यस आर नो? और ट्रांसफर शियर लोड है तो फिर से मैं यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ इसके इफेक्ट को देखने के लिए, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एट ए डिस्टेंस ऑफ x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फोर्स की वजह से यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर 1, दैट इज A। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? एक फोर्स यहाँ पे F2 इधर एक्ट हो रहा है एंड दिस इज F4। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं दोस्तों? दे विल प्रोड्यूस अ कपल, यस आर नो? करेक्ट? और कुछ ये कहानी कहाँ पे हो रही है? अबाउट दिस प्लेन, इज इट क्लियर? इस प्लेन में। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज द प्लेन ऑफ द कपल, यस आर नो?
XZ plane, plane of the couple, करेक्ट। और यहाँ पे जो कपल एक्ट होगा ये एग्जैक्ट प्लेन किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, तो ऑब्वियसली दिस प्लेन कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई हियर वी कैन गेट अ कपल अबाउट वाई एक्सिस एंड दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड इज F2 which is equal to P, yes or no, F2 is equal to हम P लिख सकते हैं, तो सिंपली क्या होगा दोस्तों P into X and this is bending couple. Why it is called bending couple? Because again y axis is a transverse axis for this member, yes or no, ये जो y axis है this is centroidal transverse axis for this member, yes or no, और transverse axis के about जब भी couple लगता है तो उसे क्या कहते हैं हम, bending couple, yes or no। तो चलो दिस F4 एंड F2 दोनों ने मिलके एक कपल प्रोड्यूस कर लिया, दैट इज बेंडिंग कपल। रिमेनिंग क्या बच गया, F3, yes or no, that is part B, F3 and this is equal to again P and this is shear force, yes or no। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला दोस्तों, due to this eccentric transverse shear load, here we can get first that is a twisting couple with constant magnitude, and number two that is bending couple with variable in nature, and number three that is direct shear force, yes or no। तो ऐसे थ्री लोड्स एक्ट होंगे, तीन तरीके की स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गए दिस ड्यू टू दिस फोर्स एफ ओनली, फोर्स पी ओनली, यस और नो। तो सिर्फ एक पी फोर्स की वजह से थ्री स्ट्रेसेस यहाँ पे एक्ट हो रही। तो यहाँ पे आप याद रखना कि whenever we have eccentric transverse shear load then here we can get number one, क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट a constant twisting couple, yes or no, number two a variable bending couple, and number three a constant shear force, करेक्ट। तो जब भी आपके पास इसेंट्रिक ट्रांसफर shear लोड होगा तो इन तीन तरीके की ये लोड एक्ट होंगे एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री डिफरेंट लोड्स हियर वी कैन गेट थ्री डिफरेंट स्ट्रेसेस, यस और नो, करेक्ट। तो लोड यहाँ पे देखो, आप देखने के लिए तो लोड सिर्फ एक ही है बट यहाँ पे स्ट्रेसेस कितनी है, थ्री स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं, यस और नो। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस लोड को आप शिफ्ट करके देखो कि इसके क्या क्या नेचर्स मिल रहे, क्या क्या लोड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, और एक बार लोड आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो सकती है। इज इट क्लियर? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको समराइज कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, दैट इज इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स मिले थे, नंबर वन अ कांस्टेंट बेंडिंग कपल, नंबर टू अ कांस्टेंट एक्सियल नॉर्मल लोड, यस और नो, करेक्ट। नंबर टू दैट इज ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड से जो हमने देखा दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, नंबर वन दैट इज वेरिएबल वेरिएबल बेंडिंग कपल, और नंबर टू क्या मिलेगा दोस्तों, कांस्टेंट शियर फोर्स, करेक्ट है, कांस्टेंट शियर फोर्स। और नंबर थ्री था आपके पास इसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, तो यहाँ पे क्या मिला, नंबर वन अ कांस्टेंट ट्विस्टिंग कपल, नंबर टू a variable bending couple, correct, and number three that is a constant shear force, करेक्ट है दोस्तों। तो इतने तरीके, अब देखो यहाँ पे हमने इन्हीं का इफेक्ट पढ़ाया, हमने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि
एक्सियल नॉर्मल लोड का क्या इफेक्ट है। याद रखना एक्सियल नॉर्मल लोड से सिर्फ आपको एक ही लोड मिलता है, दैट इज एक्सियल नॉर्मल लोड, और इसी से सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा, यस आर नो। और इसको आपको कहीं भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, यस आर नो, करेक्ट है। तो ऐसे चार तरीके के ही लोड है, और हर लोड से क्या क्या इफेक्ट मिलने वाला है यहाँ पे मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको बता दिया, करेक्ट है। और अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी दोस्तों, तो आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सेम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, you can see here we have a member like this a b member। एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है ये, जिसमें तीन मेंबर है ए बी बी सी एंड सी डी, यस आर नो। एंड द लेंथ ऑफ दिस ए बी मेंबर इज ए, लेंथ ऑफ बी सी मेंबर इज स्मॉल b, एंड लेंथ ऑफ दिस डी सी member is small c, correct। and now you can see here at this end here we have an external load like this, you can see here we have an external load like this along z axis, similarly external load along this, that is y axis, and similarly external load along x axis। ऐसे थ्री डिफरेंट एक्सिस है जिसके along ये फोर्स एक्ट हो सकते हैं। सपोज दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन लोड को अगर हम शिफ्ट करें तो हमें क्या क्या यहाँ पे इनके नेचर्स मिलने वाले हैं, इन हर एक फोर्स का क्या क्या हमें फोर्स का नेचर क्या मिलने वाला है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट है। तो इस डी एंड पे यहाँ पे तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं दोस्तों। P force is acting along z axis, Q force is acting along y axis and R force is acting along x axis, करेक्ट है। तो हम इनको एनालिसिस करेंगे, करेक्ट है, वन बाय वन। सबसे पहले P फोर्स को अप्लाई करके देखेंगे कि डीसी बीसी और एबी मेंबर में क्या क्या लोड एक्ट हो रहा है विथ मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल डायरेक्शन, करेक्ट है। देन Q के रिस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे, फिर R के लिए। और हर एक लोड के लिए हम आप देख सकते हो स्क्रीन में ऐसी टेबल है, जिसमें इस डायरेक्शन में हमने टाइप्स ऑफ लोड को शो किया है और इस डायरेक्शन में हमने मेंबर्स को शो किया है। तो डीसी मेंबर में इस पी लोड की वजह से एक्सियल नॉर्मल कितना लोड एक्ट हो रहा है, बेंडिंग कपल कितना एक्ट हो रहा है, शियर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग कपल कितना एक्ट हो रहा है, ये हमें फिल करना है इसको। फिर सीबी मेंबर में यही सेम, फिर बीए मेंबर में, फिर पी के बाद हम क्यू के लिए सेम एक्सरसाइज करेंगे और फिर आर के लिए सेम एक्सरसाइज करेंगे, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे when at this free end here we have P load, yes or no। यहाँ पे P load एक्ट हो रहा है along z axis। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर गेट में अगर पिछले 4-5 साल में आप क्वेश्चन देखोगे, स्पेशली डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आप देखोगे, तो इसेंट्रिक लोडिंग वाला ही प्रॉब्लम आया है, और इस तरीके का ही प्रॉब्लम आया सेम स्ट्रक्चर के साथ, करेक्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ गए तो ये सारा कुछ जहां कहीं भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम पढ़ोगे, चाहे वो थ्योरी मशीन हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो या स्ट्रेंथोमेट्री इटसेल्फ, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला है, करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एंड है आपका ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, correct। And the length of this AB member is A, small a, and the length of the BC member is small b, and the length of the DC member is small c, correct। So this problem can be solved by drawing its free body diagram, correct है। and once again this is very very important concept, that is free body diagram। तो यहाँ पे मैं each and every member का free body diagram ड्रॉ करके बताऊंगा आपको, और आप ध्यान से देखो कि हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मेंबर, करेक्ट। और इसे भी आपको सीखना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए, देन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इजीली, यस और नो, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट भी remove this member DC member like this, free from all the supports, correct, like this is DC member। and now you just apply all the active forces which are acting on this member। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, that is P force, is it clear, at a time here we have only P force, is it clear। now you can see, now tell me one thing, whether this member is in equilibrium or not, because every free body diagram must be in equilibrium।
कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होना चाहिए। तो आपको देखना है वेदर इट इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो आंसर मिलेगा यस, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, दिस मेंबर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। सो हाउ टू मेक दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? बाय अप्लाइंग a force with equal magnitude and opposite direction. Whatever force acting on this member, जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में विथ सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम एक रिएक्शन अप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? तो नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देन वी कैन से दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यस आर नो? अब कह सकते हैं क्या? यस आर नो? करेक्ट। नाउ इन दोनों फोर्स के अलावा कोई और फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? अगर लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स इज देयर एनी अदर लोड? नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्सियल नॉर्मल लोड। मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी हैव आवर member which is subjected to axial normal load, then it will always subjected to only one load, that is axial normal load, and it always subjected to only one stress, that is axial normal stress. yes or no? करेक्ट। तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट बीसी। बीसी मेंबर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज सी एंड एंड दिस इज डी एंड। नाउ you can see here at this C point, here we have two C points. One C point belongs to DC member and one C point belongs to BC member. This is B actually, not D. Correct? And both C are common point. Yes or no? So जो भी इस C point पे act हो रहा है, this is reaction. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is action and this is reaction. इस C point पे जो भी act हो रहा है, this is called as reaction. तो जो भी यहाँ पे रिएक्शन एक्ट हो रहा है, इस रिएक्शन को मुझे शिफ्ट करना है एट दिस सी पॉइंट विथ अपोजिट डायरेक्शन। यस आर नो? तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का फोर्स मिलेगा। यस आर नो? बोलो। डीसी मेंबर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, डीसी मेंबर के सी एंड में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज रिएक्शन, और मुझे इस रिएक्शन को एक्शन के फॉर्म में इस बीसी मेंबर के सी पॉइंट में शिफ्ट करना है। कर सकता हूं? यस आर नो? ओके, चलो शिफ्ट कर दिया। नाउ वन थिंग once again, what is the nature of this load with for this BC member? So simply we can say this is TSL, transverse shear load. Yes or no? Why? Because it is acting along the centroidal axis of this member. क्योंकि अगर इस मेंबर के लिए मैं एक्सिस लिखना चाहूं तो जो y एक्सिस है this is normal axis. Yes or no? Centroidal normal axis. Remaining x and z, this is called as centroidal transverse axis. यहाँ पे जो P लोड एक्ट हो रहा है, as we know that this P लोड is acting along z axis. तो ये z हमेशा z axis के along ही एक्ट होगा, चाहे हम इसको कहीं भी शिफ्ट करें। तो z axis is a centroidal transverse axis for this member. That's why it is called as TSL, transverse shear load. Correct? And now as we know that, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि whenever we have TSL, transverse shear load, then it will always produces a variable bending couple. चलो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा देता हूँ। You can see here, you can see this is TSL, और TSL से क्या मिलता है? वेरिएबल बेंडिंग कपल एंड कांस्टेंट शियर फोर्स। यस आर नो? तो सिंपली यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूँ एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ड्यू टू दिस P load in this direction, here we can get a couple, that is P into x. Now tell me the axis of this couple, किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है? और चलो मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, ये कपल एक्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आप मुझे बता दो कि ये कपल किस एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है। तो रिमेंबर वन थिंग, जिस एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट हो रहा है, उस एक्सिस के अलोंग कभी भी ये कपल एक्ट नहीं हो सकता। और हमें यह भी पता है कि टीएसएल की वजह से वेंडिंग कपल मिलेगा, और वेंडिंग कपल की कंडीशन है कि ये कपल हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ही लगेगा। तो एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन सा? ओनली जेड एक्सिस। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस कपल इज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस। करेक्ट। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको पता है कि ये जो फोर्स है ये टीएसएल है, और टीएसएल से हमें मिलता है वेरिएबल बेंडिंग कपल। करेक्ट। और दूसरा मिलता है कांस्टेंट शियर फोर्स। ये आपको दिमाग में रखना, आपको लिखना नहीं हर बार।
TSL है तो वेरिएबल बेंडिंग कपल। अब बेंडिंग कपल की पहचान है कि ये जो कपल है दिस इज ऑलवेज एक्टिंग अबाउट एनी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लग सकता है। और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सी है? एक्स एंड जेड फॉर दिस पर्टिकुलर मेंबर। ये सानो एक्स एंड जेड। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट एक्स? तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी सॉरी व्हाई नॉट जेड, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये जेड के अबाउट नहीं एक्ट होगा क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग तो ये फोर्स इटसेल्फ एक्ट हो रहा है। तो जिस एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट होगा वो कभी भी एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट कभी भी कपल एक्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों सिंपली ये जो कपल एक्ट होगा दिस इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ये सार नो करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं? आपको सिर्फ याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को कि बेंडिंग कपल है तो ट्रांसवर्स एक्सिस का अबाउट लगेगा। और आपको देखना है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सी, तो आपने देखा एक्स और जेड एक्सिस है। अब आपको देखना है कि इनमें से किस एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। उस एक्सिस के अबाउट कपल तो कभी नहीं लगेगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है तो जेड तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन? एक्स। करेक्ट है? तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि ये कैसा घूमेगा नहीं घूमेगा। आपने खुद ही यहाँ से कुछ क्वेश्चन किए और आपको आंसर मिल गया। करेक्ट है? तो ये कपल मिला। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो एम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है, यस आर नो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दोस्तों P इंटू बी। और ये कपल एक्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस आर नो? तो अब देखो इस सिस्टम को हमें लाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सो फॉर मेकिंग इन इक्विलिब्रियम वी जस्ट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लाइक दिस, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे एक कपल। यहाँ पे एक कपल एक्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड का दैट इज एम एक्स मैक्स जो कि P इंटू बी सेम मैग्नीट्यूड का काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कपल अप्लाई कर दूं तो अब आप देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि नहीं? यस आर नो? करेक्ट है? तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस BC मेंबर। अब नेक्स्ट मेंबर है, यू कैन सी हियर अनदर मेंबर दैट इज AB मेंबर। और आप ध्यान से देखो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं इनकी पोजीशन देखो। यहाँ पे DC मेंबर सबसे नीचे था तो मैंने इसका सबसे नीचे फ्री बॉडी डायग्राम। फिर इसके बगल में अपर साइड देखो आप DC के साइड में अपर साइड ये BC मेंबर है तो मैंने इस DC के अपर साइड राइट हैंड साइड में अपर साइड इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। फिर AB मेंबर इस BC के लेफ्ट साइड में है तो मैंने लेफ्ट साइड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अबव द B पॉइंट, ये सानो। तो कुछ इस तरीके से ये फॉलो करो। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम रॉन्ग होने का चांसेस भरपूर रहेगा। करेक्ट है? चलिए नाउ वंस अगेन, अब यहाँ पे देख रहे हो वंस अगेन ये जो एक्ट हो रहा है ये सब रिएक्शन है। क्या ये? रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को वंस अगेन हमें एक्शन के फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जो P फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द राइट, तो मैं यहाँ पे टूवर्ड्स द लेफ्ट फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अपोजिट यस आर नो? दिस इज P फोर्स। यहाँ पे जो कपल लग रहा है विच इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट है? करेक्ट? यस। तो यहाँ पे जो कपल एक्ट होगा दिस इज एक्टिंग अबाउट सॉरी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस आर नो? लाइक दिस। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्लॉकवाइज। एंड दिस इज इक्वल टू एम एक्स मैक्स। एक्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक्सिस मुझे पता होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि किस एक्सिस के अबाउट एक कपल लग रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? P इंटू बी इन क्लॉकवाइज। तो आई थिंक अब सारे फोर्स एंड कपल सब कुछ शिफ्ट हो गया, ऐसा नो? अब इस सिस्टम को मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है तो कैसे ला सकते हैं? बाय अप्लाइंग a reactive force like this with same magnitude and opposite direction, and similarly with reactive couple like this mx that is P into b in counter clockwise। अब आप देखो ये जो AB मेंबर है ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया कि नहीं? यस आर नो? करेक्ट। और जैसे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो अब हमें क्रिस्टल क्लियर पता है कि ईच एंड एवरी मेंबर किस किस तरीके के फोर्सेस या लोड, फोर्स ना कह के मैं लोड बोलूंगा। करेक्ट? यहाँ पे कौन कौन से लोड एक्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं इसका अब टेबल फिल करूं। करेक्ट?
तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ. लेट्स सी हियर. Okay. Now you can see here. This is DC member, yes or no? And this is CB member. Is it clear? And this is PA member, yes or no? And in this direction here I am represent load. That is axial normal load, bending couple, shear force and twisting couple. Yes or no? तो चलिए देखते हैं ड्यू टू दिस पी लोड यहाँ पे क्या क्या एक्ट हो रहा है. तो सबसे पहले इस डीसी मेंबर को देखो. आपको यहाँ पे सिर्फ एक्शन को टेबल पे लिखना है. रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है. ओनली एक्शन इज कंसीडर्ड. करेक्ट. नाउ यू कैन सी इन दिस डीसी मेंबर कौन सा लोड एक्ट हो रहा है. ओनली दिस लोड. यस और नो. दैट इज पी विच इज एक्सियल नॉर्मल टेंसाइल लोड. तो मैं इसे पी पॉजिटिव लिख सकता हूँ एंड दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दिस इज टेंसाइल इन नेचर. यस और नो. And there is no bending couple, there is no shear force, and there is no twisting couple. Yes or no? Now, in case of BC member, then you can see here. Here we have a constant shear force, that is P, and a variable bending moment like this. Yes or no? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a constant axial. There is no axial normal load. Yes, here we have a bending couple, that is mx is equal to P into x in clockwise direction. Yes or no? एंड इसका नेचर है वेरिएबल. ये वेरिएबल नेचर का एक्ट हो रहा है. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या हो सकता है दोस्तों. मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट P into B in clockwise. And what about shear force? Yes, here we have P shear force. There is any twisting couple? No, zero twisting couple. Now once again you can see this AB member and especially you see B point. Yes or no? इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे P लोड कैसे एक्ट हो रहा है. दिस इज एक्सियल नॉर्मल कंप्रेसिव लोड एंड दिस इज कांस्टेंट बेंडिंग कपल. यस और नो. यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज P एंड दिस इज नेगेटिव मींस दिस इज कंप्रेसिव लोड. और यहाँ पे कपल क्या एक्ट हो रहा है. कांस्टेंट बेंडिंग कपल दैट इज mx is equal to P into B in clockwise direction. Yes or no? And this is constant. Is there any shear force? No, zero. Is there any twisting couple? No. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि in DC member here we have only bending, sorry, only axial normal stress. Yes or no? In CV member we have shear stress as well as variable bending stress. And in AB member or BA member here we have compressive stress, compressive axial normal stress and a constant bending stress. Yes or no? Correct. Okay. Next another example. Same example का second part है. Now if a force which is acting along y axis and this is very important. मैं इसी से आपको बताऊंगा कि गेट में इसी टॉपिक से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं. इसको आप ध्यान से देखना कि हाउ टू शिफ्ट दिस लोड फ्रॉम दिस position to any other position. This is A, this is B end, this is C end, and this is D end. Is it clear? And the length of this member is A, length of this member is B, and the length of this member is C. Now once again here I am going to draw its free body diagram. First we make a DC member. Yes or no? Like this. And first we apply a force which is acting already, which is acting in this member, that is Q. और आप देख सकते हो this Q load is acting along y axis. Is that clear? Now this y axis is a transverse centroidal transverse axis for this member. Yes or no? This y axis is a centroidal transverse axis for this DC member. And whenever we have a load which is acting along centroidal transverse axis, then this is called as transverse shear load. और ट्रांसवर्स shear load है तो क्या आएगा दोस्तों. वेरिएबल कपल प्लस कांस्टेंट shear force.
तो फटाफट मैं यहाँ पे कपल अप्लाई कर सकता हूँ. इफ वी कंसिडर अ section at a distance of x like this, then here we have a couple like this. In this direction we have a couple that is mx. mx क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए x एंड y ये दो ही सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस थी. y के अलोंग फोर्स ऑलरेडी एक्ट हो रहा है, तो कपल यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट लगेगा. इज इट क्लियर? एंड इट्स वैल्यू इज q टाइम्स ऑफ x इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये सारनो. और ये कैसा है? वेरिएबल नेचर का है. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? mx max is written as q times of c because the length of this DC member is c and the direction is counterclockwise. तो ऐसे लिख सकता हूं. Now for making equilibrium of this system, here I am going to apply a reactive force. You can see here opposite to the applied force. Yes or no? Like this. This is q, and similarly a reactive couple like this mx is equal to q into c in clockwise direction. Yes or no? This is reaction. Remember, this is force and couple both are reaction. Is it clear? This is free body diagram of DC member. Now you can see this member is in equilibrium condition. Yes or no? Correct है. Now next member, that is BC member. तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी इस सी पॉइंट में जो भी रिएक्शन एक्ट हो रहा है हमें यहाँ पे एक्शन के फॉर्म में शिफ्ट करना है. तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूं? हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस. इस फोर्स का अपोजिट क्यू. यस आर नो? यहाँ पे जो कपल एक्ट हो रहा है किस एक्सिस में लग रहा है? एक्स एक्सिस का बोर्ड लग रहा है. यस आर नो? और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पे कपल कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज. यस आर नो? यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज विथ सेम एक्सिस एंड सेम मैग्नीट्यूड q इंटू सी इन काउंटर क्लॉकवाइज. सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा दोस्तों. एंड दिस इज बेंडिंग कपल. याद रखना, दिस इज बेंडिंग कपल. इज इट क्लियर? अब इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं? बाय अप्लाइंग a reactive force and a reactive movement. Yes or no? The reactive force कुछ इस तरीके का एक्ट होगा and the reactive movement is nothing but this is like this. mx is equal to q into c और डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज. अब आप देख सकते हो कि ये बीसी मेंबर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका है. अब आपको ध्यान से देखना है इस मेंबर को. यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, हालांकि है नहीं, फिर भी करेक्ट है. दिस इज ए बी मेंबर. इज इट क्लियर? और ये याद रखना दोस्तों, आपको मल्टीपल टाइम इस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है. करेक्ट है? एक बार में हो सकता है आपको ये समझ में नहीं है. मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करो. मल्टीपल टाइम हो सके तो आप कुछ कुछ पेन लेके इस मेंबर को बना के और फिजिकली फील भी कर सकते हो फोर्स को अप्लाई करके. करेक्ट है? तब आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. और एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा. ये सानो ये कॉन्सेप्ट. करेक्ट है? तो चलिए सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं एक्शन के फॉर्म में शिफ्ट कर दूं. ये सानो यहाँ पे देख रहे हो ये क्यू अपवर्ड लग रहा है, तो मैं इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता हूँ. ये सानो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कपल एक्ट हो रहा है ये एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट होगा. mx is equal to q into c in counter clockwise. ये सानो करेक्ट है? तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहे थे उसे हमने यहाँ पे एज इट इज शिफ्ट कर लिया. अब आप देखो ये जो q लग रहा है, दिस इज नथिंग बट अगेन दिस इज TSL फॉर दिस एवी मेंबर. और TSL है तो बेंडिंग कपल आएगा ही, वेरिएबल बेंडिंग कपल. तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे x डायरेक्ट डिस्टेंस में एक सेक्शन कंसिडर कर लूं लाइक दिस, तो इससे जो वेरिएबल बेंडिंग कपल आने वाला है कुछ इस तरीके से आएगा. क्या दोस्तों? दिस इज नथिंग बट m इज इक्वल टू q इंटू एक्स. यस आर नो? q इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यू कैन सी इस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. इस फोर्स की वजह से जो कपल लगेगा ऑब्वियसली क्लॉकवाइज लगेगा. अब आता है एक्सिस. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्यू फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस. और इस एपी मेंबर के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सी है? एक्स एंड वाई. तो वाई के अलोंग तो ये फोर्स एक्ट हो गया, तो वाई तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन? एक्स एक्सिस. तो सिंपली लिख सकते हैं mx इज इक्वल टू क्यू इंटू
x. Now you can see here we have two couples, both are acting in same plane with same axis, but the direction is different. तो मैं क्या इनका इक्विवेलेंट वैल्यू लिख सकता हूं क्या, रिजल्टेंट वैल्यू? तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, एम एक्स इज इक्वल टू क्यू. अब देखो इधर यू कैन राइट सी माइनस एक्स. अगर सी माइनस एक्स लिखोगे तो डायरेक्शन हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज. अगर आप एक्स माइनस सी लिखोगे तो हम एक्स को डोमिनेट करेंगे तो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज. तो मैं अभी x को ही डोमिनेट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा q इंटू एक्स माइनस सी. अब चूंकि x को डोमिनेट किया है तो यहाँ पे कपल का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज. यस आर नो? करेक्ट? ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर मैं c को डोमिनेट करता हूं तो ये डायरेक्शन हो जाता है काउंटर क्लॉकवाइज. अब ये कैसा कपल है दोस्तों, ये वेरिएबल कपल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो एम मैक्स कैन बी रिटर्न एज q इंटू व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है, a माइनस सी क्लॉकवाइज. यस आर नो? तो कुछ इस तरीके का ये कपल एक्ट होगा, इट्स मैक्सिमम वैल्यू. करेक्ट? अब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लिखने के लिए मैं क्या करूं? तो नाउ यू कैन सी, first here I am going to apply a force like this which is acting in the upward direction with magnitude q. yes or no? और साथ में यहाँ पे मैं एक कपल अप्लाई करने वाला हूँ, that is mx is equal to q into x minus c. sorry, not x minus c, this is a minus c. और डायरेक्शन क्या होगा इसका दोस्तों, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब आप देखो कि ये होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया कि नहीं. करेक्ट है? तो कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड वंस अगेन हम लोग इसके लिए टेबल अगर बनाए तो देखो कैसी टेबल बनेगी दोस्तों. यू कैन सी हियर, ओके. नाउ यू कैन सी हियर, here we have axial normal load, here we have bending couple, shear force और ट्विस्टिंग कपल. इस टेबल को फिर से पढ़ते हैं. यहाँ पे मेंबर कौन सा है, टीसी, और किस लोड की का हम इफेक्ट दे रहे हैं, क्यू का. एंड हियर वी हैव सीबी मेंबर एंड पीए मेंबर. ये सार नो. तो चलिए देखते हैं, डायग्राम को देख के हम यहाँ पे डेटा भरेंगे. तो इस डीसी मेंबर पे देखो, डीसी मेंबर के इस डी एंड पे देखो कौन कौन से लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है. तो एक ये क्यू डायरेक्ट शियर फोर्स एक्ट हो रहा है और ये बेंडिंग कपल लग रहा है. ये सार नो? इसको लिख दूं मैं यहाँ पे. Here we have, there is no external normal load. Yes, here we have a bending couple, that is mx is equal to q into x in counter clockwise direction. और ये वेरिएबल नेचर का है. और दोस्तों आप इसे पॉज कर करके देख सकते हो इस वीडियो को. करेक्ट है? और थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हो कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं. करेक्ट? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज इक्वल टू Q इंटू सी. डायरेक्शन ऑलरेडी काउंटर क्लॉकवाइज होगा. शियर फोर्स क्या है, एस क्यू. ट्विस्टिंग कपल क्या है, 0. नेक्स्ट बीसी मेंबर के लिए चलिए देखते हैं. तो बीसी मेंबर में आप देखो, हियर वी हैव एन एक्सियल लोड Q और अब कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट mx. यस आर नो? यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यस, हियर वी हैव Q पॉजिटिव टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट बेंडिंग कपल है mx इज इक्वल टू Q इंटू सी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये कांस्टेंट है दोस्तों, याद रखना. एंड देयर इज नो शियर फोर्स, देयर इज नो ट्विस्टिंग कपल. नेक्स्ट इन बीए मेंबर में देखो, हियर वी हैव दिस कपल q इंटू ए माइनस सी और q डायरेक्ट शियर फोर्स. यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर देयर इज नो एक्सियल नॉर्मल लोड, हियर वी हैव वेरिएबल बेंडिंग कपल, दैट इज mx इज इक्वल mx इंटू इक्वल टू q इंटू x माइनस सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड दिस इज वेरिएबल. यस आर नो? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, mx max is equal to q into a minus c in clockwise. Yes or no? And is there any shear force? Yes, here we have q shear force.
इज देयर एनी ट्विस्टिंग कपल? नो, जीरो ट्विस्टिंग कपल। करेक्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ऐसी टेबल फिल कर सकते हो। और एक बार टेबल फिल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल गया कि किस मेंबर में कौन कौन से लोड एक्ट हो रहे हैं, किस नेचर के एक्ट हो रहे हैं, जिससे आप इजिली स्ट्रेस फाइंड आउट कर सको कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट होंगी। और एक बार स्ट्रेस पता चल गई तो आप इजिली डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए, आज की इस क्लास का ये लास्ट पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, उसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका। एंड नाउ इन दिस केस द लोड इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज आर। ये जेड के अलोंग एक्ट हो रहा है और ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें और देखो थोड़े से आपको ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। एंड वंस अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी मेंबर, एंड इट्स लेंथ इज सी, इट्स लेंथ इज बी एंड इट्स लेंथ इज ए। करेक्ट। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाए फिर से। तो सबसे पहले हम दोस्तों ड्रॉ करेंगे डीसी मेंबर को। यू कैन सी हियर दिस इज डीसी मेंबर। हमेशा फ्री एंड से स्टार्ट किया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। करेक्ट है। नाउ फर्स्ट यू अप्लाई, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसको अप्लाई कर दो लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज फोर्स आर। करेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी दिस जेड एक्सिस इज अ, सॉरी मैंने यहाँ पे जेड लिख दिया बट दिस इज नॉट जेड, एक्चुअली दिस इज एक्स एक्सिस। करेक्ट। दिस एक्स एक्सिस इज अ सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस। और कौन सी सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस है इस मेंबर के लिए? तो y इज अ सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर दिस मेंबर एंड z इज अ सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस। करेक्ट। तो चूंकि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस आर लोड इज एक्टिंग अलोंग सेंट्रोइडल ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सियल लोड। और ट्रांसवर्सियल लोड है तो दोस्तों क्या आएगा? हियर वी हैव अ वेरिएबल बेंडिंग कपल। यस आर नो? अगर आप यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है। करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे एक कपल मिलेगा, दैट इज एम, इट्स मैग्नीट्यूड इज आर इंटू एक्स। अगर आप इसे देखो तो ये आपको दिखेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल लगता हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस कपल? तो टीएसएल दोस्तों हमेशा वेरिएबल बेंडिंग कपल प्रोड्यूस करता है, और बेंडिंग कपल की पहचान है कि ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो एक्स के अबाउट तो ये फोर्स खुद ही एक्ट हो रहा है, तो बचा कौन? वाई। तो सीधे लिख दो कि ये कपल जो एक्ट होगा ये वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा। ये सार नो समझ में आया कि नहीं? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आर इंटू सी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सार नो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे हमने लिख दिया। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या करें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दो, दैट इज आर। और सिमिलरली यहाँ पे सेम प्लेन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन के साथ यहाँ पे एक कपल अप्लाई कर दो, दैट इज आर इंटू सी इन क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? ये क्लॉकवाइज है दोस्तों, ध्यान देना, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। करेक्ट है। अब आप देखो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया कि नहीं? यस, दिस सिस्टम इज इन equilibrium. Very good. Another member is, this is BC member. Is it clear? Now see once again. First we need to shift this load from this reactive point to active point. तो हम यहाँ पे फोर्स को शिफ्ट कर दें like this, and this is nothing but this is force R। और साथ में यहाँ पे देखो ये कपल लग रहा है which is acting in clockwise, तो यहाँ पे कपल क्या होगा? This couple is acting in anti-clockwise, that is M, sorry this is my not x, my is equal to r into c। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखो यू कैन सी हियर, for this BC member here we have y axis as a centroidal normal axis and x and z are centroidal transverse axis. And now you can see this couple is acting about longitudinal or normal axis of this member. And remember one thing, whenever we have a couple about normal axis or longitudinal axis, then this is called as twisting couple। जो इस DC के लिए बेंडिंग कपल था वही इस मेंबर के लिए क्या बन गया दोस्तों? ट्विस्टिंग कपल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिला। Now what about this load R? So obviously this R is acting along x-axis, and x-axis is a centroidal transverse axis for this BC member. Therefore this is TSL, transverse shear load.
और TSL है तो यहाँ पे आएगा वेरिएबल बेंडिंग कपल। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बेंडिंग कपल अप्लाई कर देता हूँ। आप सिंपल से यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसिडर करो अबाउट दिस एक्स एक्सिस। ये कपल कैसे एक्ट होगा दोस्तों, m इक्वल टू r इंटू एक्स एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। अगर आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा, यस आर नो। नाउ टेल मी अबाउट द एक्सिस। तो ऑब्वियसली आपने कहा सर ये तो बेंडिंग कपल है। अब बेंडिंग कपल है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस ही होना चाहिए, उसी के अबाउट एक कपल लग सकता है। तो आपने देखा है ये जो आर लोड है ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो खुद ही लग रहा है, तो बचा कौन सा, जेड एक्सिस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ दिस कपल इज एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस, यस आर नो। और ये वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज आर इंटू बी इन क्लॉकवाइज। तो अब दोस्तों आपको देखने को मिला कि इन दिस बीसी मेंबर वी हैव direct shear force that is R, a variable bending couple that is mz, a constant shear force twisting couple like this, yes or no। अब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो आप फोर्स अप्लाई करो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल अप्लाई कर दो। एम वाई इज इक्वल टू आर इंटू, आप प्रॉपरली लिखो, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, उसका डायरेक्शन लिखो। ये आरसी जो लग रहा है, हाँ अब डायरेक्शन की बात यहाँ पे थी, ये क्लॉकवाइज था तो ऑब्वियसली ये कपल काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा, ये सानो। यहाँ पे जो कपल आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, करेक्ट है दोस्तों। डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, ना एक्सिस चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा, बस उसका नेचर बदल जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक लगेगा बेंडिंग कपल लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एम जेड, दिस इज इक्वल टू आर इंटू बी, और डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अब आप देखो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया क्या, यस दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। नाउ हियर वी हैव अनदर मेंबर दैट इज ए बी मेंबर, करेक्ट है दोस्तों। नाउ वंस अगेन यू कैन सी हियर वी हैव अ फोर्स विच इज एक्टिंग लाइक दिस, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे रिएक्टिव एक्टिव फोर्स अप्लाई कर दूं, ये लो ये फोर्स आ गया दोस्तों। और यहाँ पे जो जो लग रहा है पहले उसे शिफ्ट करो, mz देखो, तो mz लग रहा है यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू, तो यहाँ पे अगर मैं इस mz को शिफ्ट शिफ्ट करूँ तो देखो यहाँ पे फिर से ये जो z एक्सिस है इस मेंबर के लिए ये सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो ये जो mz कपल इस bc के लिए बेंडिंग कपल था, वही ab मेंबर के लिए क्या बन गया दोस्तों, ट्विस्टिंग कपल, करेक्ट है। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ ट्विस्टिंग कपल को रिप्रेजेंट करने का। तो रिमेंबर इफ योर डायरेक्शन ऑफ व्यू इज लाइक दिस, अगर आपके पास कोई कपल क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, करेक्ट है, तो आप सिंपल से देखो, सपोज दिस इज योर स्क्रू ड्राइवर, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो कैसे मूव करेगा, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, ऐसा नो व्यूअर से दूर जाता हुआ दिखेगा। तो रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर वी हैव अ क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कपल देन इट विल रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर की तरफ मूव करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कपल, यस आर नो। ये ट्विस्टिंग कपल का रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। एंड सिमिलरली अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ व्यू आपका अभी भी यही फिक्स है, तो इस केस में अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज तो ये मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा, व्यूअर की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस ना के बराबर है, करेक्ट है। क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि अगर ये कपल लगेगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ व्यू कुछ इस तरीके का है, करेक्ट है। तो इस mz को मुझे क्लॉकवाइज के साथ शिफ्ट करना है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू। तो इस डायरेक्शन ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं इसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूं लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड दिस इज mz, और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, p इंटू बी इन क्लॉकवाइज। चलो डायरेक्शन लिख भी दिया मैंने और शो भी कर दिया, करेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पे एक लग रहा है एम वाई कपल, जो कि यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल था, लेकिन यहाँ पे आके क्या बन गया, बेंडिंग कपल। यहाँ पे लग रहा है ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कैसे लगेगा, दिस कपल इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एम जेड इज इक्वल टू आर इंटू सी इन काउंटर क्लॉकवाइज।
अब आप देखो ये जो आर लोड है दिस इज ट्रांसफर सीए लोड, ऐसा नो, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस नहीं है, करेक्ट है, दिस इज ट्रांसफर सीए लोड। तो ट्रांसफर सीए लोड होने की वजह से इस डायरेक्शन में एक बेंडिंग कपल आएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज एम, और बेंडिंग कपल किस एक्सिस का बोर्ड लगेगा, तो ऑब्वियसली ये आर लोड है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, और ए बी मेंबर के लिए एक्स एंड वाई दो ट्रांसवर्स एक्सिस थी, तो बची कौन, वाई, तो एम वाई लिख सकता हूँ, ये सानो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा रॉन्गली जेड लिख दिया, एक्चुअली दिस इज वाई नॉट जेड, करेक्ट। तो एम वाई इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आर इंटू एक्स, और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो सिर्फ फिर से आप देखो यहाँ पे कि टू इक्वल एंड अपोजिट कपल्स लग रहे हैं यहाँ पे, सॉरी टू इक्वल अपोजिट नहीं, टू कपल्स लग रहे हैं, करेक्ट है, सेम प्लेन में एक्ट हो रहे हैं विथ अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं इनका एक रिजल्टेंट कपल लिख सकता हूं, क्योंकि इन्हें मैं ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ये सार नो, ये क्या आएगा दोस्तों, एम वाई इज इक्वल टू आर इंटू एक्स माइनस सी, और डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने एक्स को डोमिनेट किया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, एम वाई मैक्स इज इक्वल टू आर इंटू ए माइनस सी, ये सार नो, करेक्ट। तो और डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो ये मिल गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैं इसका इक्विवेलेंट वैल्यू लिख चुका हूँ, करेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरीके से रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, लाइक दिस, ये आर नॉट क्यू, दिस इज आर, करेक्ट। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो ट्विस्टिंग कपल लगेगा विच इज एक्टिंग लाइक दिस, आपने देखा बी एंड में क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ए एंड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, विथ मैग्नीट्यूड mz इज इक्वल टू आर इंटू बी इन काउंटर क्लॉकवाइज, और साथ में यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बेंडिंग कपल, दैट इज एम वाई इज इक्वल टू आर इंटू ए माइनस सी इन काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। अब आप देखोगे सर यहाँ तो दुनिया भर के फोर्सेस अप्लाई कर लिए, तो आप ध्यान से इसको पॉज कर करके देखोगे, मल्टीपल टाइम्स देखोगे दोस्तों, तो ये इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर सकते हो, दो तीन पेन को आप साथ में जोड़ना, फोर्स अप्लाई करना और उसको फील करना, तो अब आपको फिर कंप्लीटली पता चल जाएगा। और एक्शन और रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, और जब भी आप रिएक्शन से एक्शन की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन चेंज करोगे, एक्शन के से रिएक्शन की तरफ जाएंगे तो भी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो चलिए फिर इसके लिए मैं टेबल बना देता हूँ दोस्तों, समरी लिख देता हूँ, करेक्ट है, यू कैन सी हियर वंस अगेन। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, अपने आप बनने लगेगा, करेक्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, here we have DC member, here we have CB member and here we have BA member, और यहाँ पे लोड कैसे एक्ट हो रहा है दोस्तों, एक्सियल नॉर्मल लोड, बेंडिंग कपल, shear force and twisting couple, correct. Now you can see DC member, तो इस D end पे देखो, at this D end here we have an direct shear force that is R and a variable bending couple that is my equal to Rx, correct. Now you can see there is no axial normal load, here we have variable bending couple, my is equal to R into X in counterclockwise direction, yes or no, and this is variable in nature and its maximum value is nothing but my max is equal to R into C in counterclockwise. And what about shear force, yes, here we have R. What about twisting couple, no, 0. Now BC member, now if we see this BC member, then you can see at this point
at this point. Here we have direct shear force, here we have bending couple My, and here we have, sorry, My is a twisting couple and Mz is a bending couple. मैं यहाँ पे लिख दूं, here we have, there is no axial normal load, here we have bending couple, that is Mz is equal to R into X in clockwise direction, and this is variable, yes or no, and its maximum value is nothing but this is Mz max equal to R into B in clockwise. And what about shear force? Yes, here we have R. And what about bending couple? Yes, here we have twisting couple. My is equal to R into C in counter clockwise direction. और ये कैसा है दोस्तों? This is constant. Is it clear? Now you see this BA member, correct? And at this B point, here we have our direct shear force R. This is variable bending couple and this is twisting couple, correct? Then you can see here there is no axial normal load. Here we have bending couple. Yes, My is equal to R into X minus C in clockwise, and this is again variable. और इसकी maximum value है, maximum value of this My couple is R into A minus C, correct? In clockwise. And yes, here we have R is a direct shear force. And what about twisting couple? Yes, here we have Mz is equal to R into B in clockwise, constant twisting couple. Yes or no? Correct. तो आप देख सकते हो DC member we have direct shear stress as well as variable bending stress. In BC member here we have variable bending stress, direct shear stress and torsional shear stress, and similarly in BA member. Yes or no? Correct. So इस तरीके से आप इसको completely analysis कर सकते हो. अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो गेट एग्जाम्स में आए हुए थे, जहां पे इन कॉन्सेप्ट का यूज आएगा. दोस्तों आप चेक कर लेना. एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, गेट 2014 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड गेट 2002 इन सिविल इंजीनियरिंग. हियर वी हैव अ लोड लाइक दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x. तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट a, फॉर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए x की क्या वैल्यू, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, करेक्ट है. तो अगेन इस लोड को यहाँ पे शिफ्ट करना था, करेक्ट है. एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, प्रीवियस एग्जाम्स में ही आया, देखा होगा आपने. हियर वी हैव अ लोड लाइक दिस, देन व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, a point, what is the maximum deflection at this point. And similarly gate 2021 में एक एग्जांपल आया था कुछ इस तरीके से, and in this case force is acting like this, and again यहाँ पे पूछा था what is the deflection at this point, करेक्ट. तो ऐसे बहुत सारे, और आप shear force bending moment डायग्राम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है एंड आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ इट्स shear force and bending moment डायग्राम और give the value of maximum bending stress and maximum bending moment, correct. तो इस तरीके की प्रॉब्लम तभी आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों when you know how to shift this load from this position to this position. और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में और इस क्लास में कंप्लीटली सिखा दिया कि हाउ टू शिफ्ट लोड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, करेक्ट है दोस्तों. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ना बहुत नेसेसरी है. अब आप सोच रहे हो कि सर स्ट्रेस का नाम ही नहीं लिया अभी तक. तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेस स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, करेक्ट है. तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आप देखते रहिए. वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग मी, एंड इफ आप इस लेक्चर को, आपको अगर पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना मत भूलना, और इसे आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, करेक्ट है. तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू.